Hello, welcome to my channel Education World. Today in this video we'll learn about how to prepare for GS paper 4. Okay, so this is one of the difficult papers in UPSC. Also it is a scoring paper, okay, because it mainly consists of your personal experiences or your personal responses. Okay, so this paper is quite scoring, but many aspirants find it difficult to tackle this paper. So in this video we'll study how you should prepare for this, okay, and how your strategy should revolve for this paper. Okay, so let's begin firstly with the syllabus of the ethics. And UPSC has clearly mentioned that what they are looking from the aspirants in this paper. Basically UPSC included this syllabus, this paper, to ensure that the civil servants, like the aspirants who become civil servants, are bound with the ethics and moral values. Okay, so they are basically looking for a ethical human being rather than that sarkari babu type insan. Okay, so they have basically mentioned ethics, integrity and aptitude as their main syllabus topic. Ethics is basically morality about what is right and wrong. Okay, integrity is like honesty or satyanistha. Okay, whatever work you have been given, you whether you follow it properly or not, or with honesty or not, that is basically included in integrity. And the last part in this paper is aptitude is like application of all those theoretical concepts in real life, whether you are actually performing the values that you are professing or not. Okay, so let's begin with the syllabus of the GS paper 4. See, here you can see that UPSC has clearly said that this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Okay, when you clear the UPSC exam, you are posted in a particular district, okay, as a DM or SDM, okay, at any post. If you face any real time situation which is like conflicting or which is not easily solvable, how you should approach to that situation, and whether the solution that you bring up for the people is right or wrong, that is mainly tested in this paper. Okay, so UPSC basically यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके से है वो जज करना चाहता है. ठीक है, सो आपको अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है वो किस चीज़ को बता रहे हैं, एंड सेकेंडली आप किस तरीके से एथिक्स पेपर प्रिपेयर कर सकते हो. तो हम लोग पहले वही देखते हैं कि हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है. एथिक्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आप प्रेफर कर सकते हो. आपको ऐसा कोई एक रेडीमेड नोट्स नहीं मिलेगा. हाँ, लेक्सिकन का जो बुक है उसमें प्रॉपरली सिलेबस वाइज टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हो, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओके ये सिलेबस में हमको ये चीज़ पढ़ना है. ठीक है, बट उसके अलावा और एक्चुअली उसके एडिशनल ही आपको करना पड़ेगा, जो कि आप गूगल से आप जो भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं उसके नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे. एंड जो केस स्टडीज़ है, एथिक्स दो चीज़ से रिवॉल्व करता है. एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं जो कि डेफिनेशंस और एग्जांपल से आप भर सकते हो, और फिर दूसरा रहता है केस स्टडी. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपको कैसे पहले तो सिलेबस कवर करना है.
एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डिमेंशंस, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको लेक्सिकन में मिल जाएंगे एक ओवरव्यू के लिए। बट आप जहाँ तक हो सके इसके जो एडिशनल नोट्स है ऑनलाइन रिसोर्सेस से आप उससे बना सकते हो। ओके, ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं कि एटीट्यूड कैसे होना चाहिए एंड एटीट्यूड का कैसे कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन कैसे होना चाहिए, एंड नॉर्मल पॉलिटिकल बिहेवियर में या आपके बिहेवियर में, पॉलिटिकल थॉट्स में, एटीट्यूड्स में, मॉरल वैल्यूज़ में किस तरीके से एटीट्यूड का रोल है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए ताकि एटीट्यूड को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ओके, फिर यहाँ पे दिया गया है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस। ये तो बेसिक एक क्राइटेरिया है कि सिविल सर्वेंट में किस तरीके के वैल्यूज़ होने चाहिए, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप। ओके, मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट ना करें, आप न्यूट्रल होने चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियल होने चाहिए, आपके वर्क में नेपोटिज्म नहीं आना चाहिए, करप्शन नहीं आना चाहिए। ओके, ये सारी जो क्राइटेरिया है, जो एक कह सकते हैं कि एक फीचर है, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट का, एक अच्छे सिविल सर्वेंट का, वही सब चीज़ आपको एथिक्स के पेपर में बताना होगा। ठीक है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे उन लोग ने क्लियरली दिए हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से होना चाहिए एंड इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो कोई लाइक प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स है, लाइक महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर जी हैं। ठीक है, चाणक्य के कुछ फिलॉसफीज हो सकते हैं, एरिस्टोटल के, ओके, प्लेटो के, ये सारे जो भी प्रोमिनेंट थिंकर्स है, इनके कौन कौन से आइडियाज़ थे स्पेसिफिकली एथिक्स और मॉरल्स के रिलेटेड, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उनको उनका एक पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए ताकि मे बी अगर आपको थिंकर्स पे क्वेश्चन ना आए बट उनके आइडिया या कोट आप किसी और आंसर में बता सकते हो। ठीक है, देन पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से होने चाहिए, प्रेजेंटली उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कंसर्न्स है, और कौन कौन से लॉज हम लोग बना रहे हैं उन कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस और कोड ऑफ एथिक्स, प्रॉब्लम्स इन लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारा जो भी चीज़ हम लोग ने बनाए, सिटीजन चार्टर। ठीक है, ये सब हम लोग ने बनाए तो हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, बट इनमें क्या क्या इश्यूज़ है, वो क्यों मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या अगर कोई पब्लिक फ़ंड निकलता है तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे जो चीज़ हैं वो आपको ध्यान में रखना है एंड उसको लेकर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ एथिक्स का जो पेपर है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लेंदी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी पढ़ने पड़ते हैं एंड लास्ट जो टॉपिक यूपीएससी ने भी दिया है वो है केस स्टडी। ओके, ये लेंदी इसलिए है क्योंकि आपको पूरा सिचुएशन पढ़ना है, देन उस पर आपको सोच के ये बताना है कि एक बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, वो भी लिमिटेड वर्ड्स में। सो इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो ऑफ कोर्स ये लेंदी तो है बट आप प्रैक्टिस से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड सेकेंडली एथिक्स का पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, मतलब आपको पर्सनल व्यू इसमें दिखाना रहेगा, ना कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल आंसर देना है। ओके, कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं बट उसमें भी आप पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल एग्जांपल्स या सोसाइटी के एग्जांपल्स से आप उस आंसर को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि थियोरी का जो आंसर है और केस स्टडी का आंसर है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो थियोरी के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं
उसके डेफिनेशंस पता होने चाहिए। ओके, डेफिनेशन जब होंगे तब आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है लाइक इंटीग्रिटी अगर पूछा जा रहा है या उसका एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि इंटीग्रिटी एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो उसी से आप आंसर स्टार्ट भी कर सकते हो। ओके, तो सारे टॉपिक का इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ओके, ये सारे जो भी टर्म्स दिए गए हैं इसका डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। देन इसके रिलेटेड आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स तैयार रखो आपके नोट्स में, ताकि कोई भी इन टॉपिक्स के अराउंड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस एग्जाम्पल को यूज़ कर सको। ओके, देन एप्लीकेशन अगर रिलेट क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है तो वो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि सारे जो क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ इंटीग्रिटी, why it is important, and how it can be applied in the real life situation। ठीक है, ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो व्हाट, वाई, हाउ विथ एग्जाम्पल्स। ओके, ये आप रेडी करो थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ विल कम टू द केस स्टडी पार्ट। केस स्टडी में तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो आपका देखना चाहते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर बेसिकली यूपीएससी ज़्यादातर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है या हमेशा सा जो डिबेट चलता आ रहा है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ओके, या पर्टिकुलर कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है कि वो लीगल है या नहीं, वो मॉरल है या नहीं। ओके, उन चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। ओके, जैसे अगर कोई एक इलीगल बोलते हैं बस्ती बन गया है, ठीक है, लोगों ने स्लम एरिया वहाँ पे बना लिए हैं और लोग बहुत साल से रहने लगे हैं, और ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को लेट पता चली है या एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआत में उतना एक्शन नहीं लिए हैं। तो अभी अगर आपको एक्शन लेना हुआ और वो स्लम्स को हटाना हुआ वहाँ पे रोड बनाने के लिए, तो आपका डिसीजन क्या होगा? बिकॉज वो लोग बोलेंगे कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, राइट, उन लोग का तो पूरा घर चला जाएगा। बट आपको डिसीजन लेना है कि आपको डेवलपमेंट देखना है कि वो कम्युनिटी का जो है वो इमोशंस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पार्शियल होके, ठीक है, आपको पीसफुल तरीके से उसका सल्यूशन कैसे निकालना है वो आपके आंसर्स में दिखाना होगा। ठीक है, तो केस स्टडी के लिए आप बेसिकली पहले तो क्लियर कर लो क्वेश्चन से कि कौन से एथिकल इशू के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, फिर अलग अलग कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं सोल्यूशन के, ठीक है, एंड उन सोल्यूशंस में कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ आप उसमें बता दोगे एंड बी जनरल। ओके, ज़्यादा एथिकल टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना व्यू जो है सिंपल तरीके से केस स्टडी में बता सकते हो। ठीक है, सो या इस तरीके से आप थियोरी एंड केस स्टडी ये दोनों के आंसर्स लिख सकते हो। और इसके नोट्स के लिए या बुक के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि लेक्सिकन आप रेफ़र कर सकते हो। इवन ARC रिपोर्ट जो है एथिक्स एंड गवर्नेंस के ऊपर, आप वो भी एक बार देख सकते हो अगर आपके पास अभी टाइम हो तो। बट या लेक्सिकन और ऑनलाइन रिसर्च ही इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। ओके, सो yeah, that's it for this video. I hope you guys enjoyed it, and if you liked the video, please like, share and subscribe. Catch you guys in the next video. Till then, tata, bye bye.